Okay, I'm sharing my screen, and guys, very good morning. It's, is it visible for all? Yes. Yeah, it is. Yes, yes. Okay, Yes, sir. okay, guys. So, what you mean by database? The first thing is that we start from the zero. What is the data? What is the information? What kind of storage we have? But the first question is the what is the database? What do you think about that? Storing some information or records. Very basic question asked in an interview like as a what is the database? आप लोगों को एक क्वेश्चन हमेशा पूछी जाती है। देखो, आप जब भी कोई इंटरव्यू को जाते हो या कहीं पे कोई भी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है रिलेटेड टू डेटाबेस, someone in generally ask you what you mean by that database. So what thing you knows, guys? Please Uh, tell me. it, it is nothing but a collection of data or information. Okay, it's a collection of the data, and we are storing that data into the particular data set in a table Data. format. Okay, Storing the data in a queue manner. yeah, it's a queue manner. Is it in a data format? It's in a table format. It's a database. But when we are working with the any databases, so we need some tools, some softwares. It's like as yesterday we installed the Oracle on your system. Now we are able to connect it. Correct. So this is your database. So during the training, we are learning the two things, two servers. One is your 11G, and second one is the LC. So what do you mean by this G? Anyone? It's a generation. No, it's a grid. It's a grid. Okay, and 12C, C means it's a cloud. Means during the training we are getting the both thing from the cloud operation as well as we are getting the grid operation as well as. So why I am installing the 11G? Suppose I am going to install the 12C, then we are not able to do that grid operations basically. So but when we are installing the 11G, it's a previous version of the this 12C. So some new like as 4 5 concept are introduced in the 12C. Okay, now currently we are having the version as a 20C in the market. Is it in a testing phase? So it's not delivered yet. Okay, most of organization are using the 11G, 12C and 18C. Okay, so the thing is that if you have the knowledge of the grid and if you have the knowledge of the cloud, then you are easily work on the any database. That's the concept. That's why the installation of the 11G it's happen. Okay, some concept are get introduced during the training. I also introduced that whatever concept, what thing we are introducing in a cloud. So I will introduce that thing as well. But thing is that once you have the 12C concept, it's not working on a 11G because this one is the previous version. You all guys having the Android systems? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay, from the initially Android 1 2 3 up to whatever current version is there. Okay, now some application is not supported to Android 8 and some application are supported to Android 12. It's mean it's getting the new version. You already seen that scenario. Some application for the Android it's not working for the Android 8. So there is the clear message, please use the above Android 8 version to using this application. Correct? This thing is seen before you. आप लोगों ने ये चीज पहले देखा है? Yes, yes, sir. देखा है? Same thing is Yes. there, but in database there is the some scenario, some new concept get introduced. So during the training we are getting the both thing, 11G as well as and 12C as well as. So there is again some new concept for the 12C to 18C. So that thing we also going to learn how we. So
market is using these three applications, 11G, 12C and 18C. So during this training, we are covered the all things. Got it? It's mean we have the grid knowledge as well as we have the cloud knowledge as well as. Is it clear? So let's start with this thing. Okay. So what do you mean by Oracle then? You know the database, it's the collection of the data. It's a store the data in a tabular format, and if you want to retrieve the data from the database, it is very easy to retrieve the data. Correct? But what is the Oracle? Oracle is a So to relational provide a database. service. Oracle is the relational database which is used to store the data or information permanently into your secondary storage device. Means once you store the data into that database in the form of table, it store get permanently. Yes or no? Yes, sir. Okay, means in future if you want to that data you are get easily. Correct. This Yes, sir. Excel as well as like as a one database. If you store the anything in a Excel sheet, it's store permanently into your device. In future, if you want to take that data, you just open that Excel sheet and you are finding that data. Correct? That's operation you guys are doing from the far. Yes or no? Suppose Yes, I sir. store Yes, this sir. thing. Okay, I store this thing in this sheet. So its sheet is permanently stored to my secondary device on my laptop. Yes or no? So in future, suppose Yes. I want to contact with the Yash. So what I do, I just go to the finding the where is the Yash Pardeshi and I just want to call him. So I just dialing the number. Is it same scenario we have with the database? So Oracle is the relational database which is used to store the data or information permanently into the secondary device. Okay. So if you want to operate the Oracle database, ओके अभी क्या करना है कि अगर आपके पास एक्सेल शीट है तो उसमें से म्यूट योर सेल्फ गाइस, म्यूट करो, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है तो डिस्टरबेंस आएगा. ओके देखो अभी आपने क्या किया, एक एक्सेल शीट के ऊपर डेटा डाला, उसको सेव कर दिया और आपके डिवाइस के ऊपर स्टोर करवाया. इन फ्यूचर आपको वो डेटा चाहिए तो व्हाट्स द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो? व्हाट्स द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो? Open the laptop, then open that file and finding that data. Correct? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Okay. It's mean that stored data we want to follow some procedure, open that file, then finding that data, and we are getting that data. That's a simple procedure. But in Oracle, if you want to operate over the database, then we are using some non-procedural language and some procedural language. ओके यहाँ पे क्या है कि आप जब कोई एक्सेल शीट के अंदर डेटा डाल रहे हो तो उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सेल शीट को ओपन कर रहे हो, वो फाइल वो पर्टिकुलर कंटेंट को सर्च कर रहे हो, देन वी आर गेटिंग द डेटा. ओके दैट्स द ट्रेडिशनल वे. अभी हम लोगों का सीखना क्या है कि हम लोग एक डेटाबेस, एक सर्वर, एक ओरेकल को यूज कर रहे हैं. ओरेकल को यूज करने के लिए वहां से डेटा एंटर करने के लिए, वहां से डेटा निकालने के लिए वी हैव द सम लैंग्वेजेस. इट्स अ नॉन प्रोसीजरल भी होगा और प्रोसीजरल भी होगा. सो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इज योर सीक्वल लैंग्वेज. ओके नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज इज योर सीक्वल लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज होगा आपका पीएल सीक्वल. Means if you want to the data with the non-procedural language, then we are writing the queries. Okay, suppose I want to find out this data, like as I want to require this Poonam Patil data. So what I do, I just write the query, select star from that particular table and where name is equal to Poonam Patil. Then we are getting the detail of the Poonam Patil. In PL SQL, it's a procedural language. देखो SQL क्या है आपका नॉन प्रोसीजर है, PL SQL क्या है आपका प्रोसीजर है.
नॉन प्रोसीजर के अंदर आपको सिंपल क्वेरी लिखना है, वहां पे आपको कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है. वी आर नॉट सेटिंग द सम इंस्ट्रक्शन, वी जस्ट राइटिंग द क्वेरी कि हमें ये वाला डेटा चाहिए. तो मैं क्या करूंगा सर, सिलेक्ट पूनम पाटिल का नाम चाहिए, सिलेक्ट नेम फ्रॉम द टेबल वेयर नेम इज इक्वल टू पूनम पाटिल. सो उसका सारा डिटेल आ जाएगा. लेकिन पीएल सीक्वल में क्या होता है कि वी नीड टू सेट द सम इंस्ट्रक्शन, कि वहां पे आपको लिखने पड़ते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट. ओके, अभी ब्लॉक स्टेटमेंट क्या होता है, देखो अगर आपको ब्लॉक स्टेटमेंट में डिक्लेयर हुआ, बिगिन हुआ, आपका बिजनेस लॉजिक हुआ, एक्सेप्शन हुआ, उसके बाद एंड करना है. ओके, मींस दिस ब्लॉक स्टेटमेंट आर permanently used in each and every script. ओके, मींस ये ब्लॉक स्टेटमेंट आपके कभी चेंज नहीं होता है. आपका सिर्फ जो बिजनेस लॉजिक के अंदर क्वेरी लिखा जाता है, सपोज इफ यू वांट टू डेटा फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल, देन वी आर राइटिंग दैट क्वेरी. तो ये होता है आपके ब्लॉक स्टेटमेंट में. वंस यू अंडरस्टैंड दैट ब्लॉक स्टेटमेंट, इफ यू अंडरस्टैंड दैट प्रोसीजर कि बॉस मुझे डिक्लेयर सेक्शन में ये चीजें करनी पड़ती है, बिगिन सेक्शन में ये चीजें करनी पड़ती है, एक्सेप्शन सेक्शन में मुझे एक चीज करनी पड़ती है, और एंड में मुझे वो सारी चीजें को, वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एंड करवाना है. तो इट्स मीन कि वहां पे हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स द प्रोसीजरल लैंग्वेज. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, query लिखना है, सिंपल क्वेरी लिखना है. Okay, we have the multiple things in SQL कि हम लोग ऑर्डर बाय कर सकते हैं, उसके डेट्स निकालना है, ये निकालना है, वो निकालना है, वो सारी चीजें तो हम सीख लेंगे इसके अंदर. लेकिन ब्लॉक स्टेटमेंट में क्या है कि इफ यू अंडरस्टैंड द ब्लॉक स्टेटमेंट, सर डिक्लेयर सेक्शन में क्या करना है, बिगिन सेक्शन में क्या करना है, ओके, तो ये सारी चीजें हम वहां पे एक प्रोसीजर फाइंड आउट करेंगे कि ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा, और उसके बाद ये एंड होगा. वैसे क्वेरी में नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन प्रोसीजर. इज इट क्लियर फॉर ऑल? Yes, sir. ओके, अभी देखो, नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू मीन बाय डेटा. हम डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेटा. Collection of information. It's a collection of the information. It's a collection of the raw facts. देखो, जब आप स्कूपन के अंदर आए, आपने इंक्वायरी किया कि सर आई वांट टू एनरोल फॉर द दिस SQL PL SQL Power BI बैच. ओके, तो वहां पे व्हाट्स द प्रोसीजर यू फॉलोड? Anyone can tell me? So those guys are directly connected to Scoopin office, and they want to inquire some courses. So what's the procedure? क्या क्या फॉलो किया वहां पे? क्या क्या फॉलो किया? सर हम लोगों को पहले तो लोकेशन नहीं मिल रही थी, तो लोकेशन के ऊपर हम पहुंच गए. तो वहां पे जाके हमें दर्शना मैडम मिल गई. तो हमने वहां पे क्या किया कि उनसे पूछा कि सर आई वांट टू एनरोल इनटू द दैट कोर्स, सो आई नीड सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस. करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. ऐसा ही फॉलो किया. उसके बाद क्या किया, दर्शना मैडम ने आपको एक इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लिया. करेक्ट? यस और नो? Yes. लाइक कैसे उन्होंने एक पेपर दिया और आपको बोला आपका नाम क्या है, सपोज मैंने बोला यश. ओके, या फिर मैंने बोला पूनम पाटिल. ओके, मैंने बोला पूनम पाटिल. ओके, उसके बाद उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया लाइक दिस, उन्होंने उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया. अभी ये बना आपका रॉ फैक्ट. अभी ये चीज को कोई मीनिंग है क्या अभी तक? ये चीज को कोई मीनिंग है क्या? No, sir. ओके, इट्स बिकेम योर रॉ फैक्ट. अभी उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम डेट पूनम गेट कॉल फ्रॉम स्कूपन, कॉल और मैसेज. करेक्ट? यस और नो पूनम? आपको वहां से कॉल आई? Yes, sir. अभी तक भी ये रॉ फैक्ट था. ओके, when on 27 we got the
फिक्शन। ओके, उसके बाद महेश सर ने क्या किया कि आपका सारा डेटा आपसे मंगवाया सर, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी, करेक्ट? ये चीज करवाया हमने कल ऑन फर्स्ट सेशन ऑन संडे। Yes. ओके, अभी Yes. महेश सर के पास अभी तक ये रॉ फैक्ट था, करेक्ट? अभी भी ये रॉ फैक्ट था। अभी आपका डेटा मेरे पास आने के बाद मैंने उसको एक फॉर्मेट में बनाया, इट्स पूनम पाटिल, उसका मेल आईडी, कॉन्टैक्ट, नाउ इट्स बिकेम एज अ इंफॉर्मेशन, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. Okay, so data means what? It's a collection of the raw fact जो मैंने फर्स्ट सेशन में से आपसे आपके नाम, मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लिया। इट्स लाइक एज अ, देखो इस तरीके से, ये क्या था आपका रॉ फैक्ट था। अभी ये चीज जो दिख रहा है आप लोगों को नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है? सर मुझे कुछ नाम दिख रहे हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, इसको कोई मीनिंग है? मीनिंग No, है? sir. नहीं। मतलब ये क्या था आपका रॉ फैक्ट्स, मींस कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट, इट्स अ डेटा, इट्स अ कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट। यहां से मैंने ऑपरेशन करके सारा डेटा आपका यहां पे ले लिया, देन इट्स बिकेम द इंफॉर्मेशन, करेक्ट? Yes, sir. क्लियर? देखो मैंने आपको क्या बोला, डेटा मींस व्हाट? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट्स। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, how it became as a information. Okay, now what do you mean by information? इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होगा? इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द मीनिंगफुल डेटा। अभी ये जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, इट्स अ मीनिंगफुल, इट्स अ मीनिंगफुल। Yes, sir. सपोज मुझे राज रोकड़े को कॉल करना है तो मैं यहां से कॉल कर सकता हूं, इट्स बिकेम द इंफॉर्मेशन, नाउ इट्स अ प्रोसेस्ड डेटा। तो इंफॉर्मेशन का मीनिंग होता है, इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द मीनिंगफुल डेटा और अ प्रोसेस डेटा। गॉट इट? Yes, sir. दैट्स द इंफॉर्मेशन। दो चीजें क्लियर हुआ यहाँ पे, व्हाट इज द डेटा एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, बिफोर डेटाबेस वी हैव द सम ट्रेडिशनल वे टू स्टोर द डेटा, जैसे कि हम लोग एक्सेल शीट पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल के अंदर कर रहे हैं, सीएसवी के अंदर कर रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल वे टू स्टोर द डेटा? ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल वे क्या था डेटा स्टोर करने के लिए? चलो अभी हम लोग जब ह्यूमन बीइंग इस धरती के ऊपर आ गया, वहां से शुरू करते हैं। अभी उन लोगों को पहले लिखना पढ़ना नहीं आता था। इंसान को सबसे पहले लिखना पढ़ना आता था क्या? No. वी गो टू द अश्मयुग। ओके, वी गो टू द अश्मयुग, वहां पे उन लोगों को लिखना पढ़ना आता था क्या? नहीं आता था। बट आफ्टर सम डे सम इवोल्यूशन इज हैपन, सम modification is happen in their brain and body, then they start working on that. Okay, अभी उनका जो प्रोसेस था, सबसे पहले उन्होंने कहां पे लिखा सर? स्टोन पे। स्टोन पे। No. मतलब जहां पे वो जो गुफा के अंदर रहते थे, वहां पे क्या था कि उन्होंने कुछ ड्राइंग बनाया जो कि इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ देखो, सबसे पहला उन्होंने स्टोन के ऊपर लिखा कि सर हाँ हम लोग ये लिख सकते हैं, दे आर ट्राइंग टू ड्राइंग समथिंग, और उससे कुछ पता चले। ओके, उसके बाद एक चीज आया, ताम्रपत्र आया। ताम्रपत्र, यू गाइज ऑल नो अबाउट द ताम्रपत्र। यस। उन्होंने वहां पे लिखा, मतलब वो जो चीजें लिख रहे थे वो कहीं पे जाके स्टोर हो रही है। ओके, दिस ऑल्सो अ स्टोरेज डिवाइस। ओके, उसके बाद क्या किया? फिर जो इरा आया राजा महाराजाओं का, उन्होंने क्या किया?
एक कपड़े के ऊपर लिख के भेजते थे, एक्सचेंजिंग द मैसेज, राजदूत जाके वो चीजें करता था, यस और नो? Yes, sir. देन वी हैव द इनोवेशन ऑफ द पेपर, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. पेपर का इनोवेशन हुआ, उसके बाद हम लोग पेपर पे लिखने लगे, ओके। देन Yes. पेपर का, एक पेपर पे लिखा, 10 पेपर पे लिखा, तो उसका क्या बना? Bunch. बुक बना, Books. ओके। एक पेपर को, मल्टीपल पेपर को कलेक्ट करके आया, एक बुक बना। देन पीपल आर स्टोरिंग द डेटा ऑन योर नोटबुक, ऑन योर बुक, ऑन योर पेपर। हम लोगों ने भी ये चीज किया है। व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड, हम स्कूल में जाते थे तो सारा डेटा, हमारे पास कभी मोबाइल था क्या? नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे? पेपर के ऊपर नोट्स बनाते थे, यस और नो? Yes, sir. और वो स्टोर करते थे। अभी उसके बाद एक चीज आया कि सर फाइल सिस्टम। उसके बाद क्या आया? हम लोगों के पास फाइल सिस्टम आया। कि फाइल सिस्टम में क्या था कि वी हैव अ टेक्स्ट फाइल, ओके, वी हैव अ टेक्स्ट फाइल, वी हैव अ पीडीएफ। तो उसके अंदर जो भी नोट किया जाता था वो आपके डिवाइस के ऊपर स्टोर हो जाता था। दिस आल्सो डेटाबेस, बट दीज आर द ट्रेडिशनल वेज, करेक्ट? देन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द डेटाबेस। सर हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे डेटाबेस आए मार्केट में, जैसे कि ओरेकल आया, टेराडेटा आया, बहुत सारी चीजें आई, करेक्ट? तो वहां पे क्या था कि हम लोग डेटा जो भी स्टोर करते थे वो डेटाबेस के अंदर चला जाता था। अभी देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस ईरा। अभी आपके पास ना एप्लीकेशन है, सपोज मान लो सारे लोग फोन पे यूज करते हो या नहीं करते हो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपके पास फोन पे ना होता, ना बैंकिंग का एप्लीकेशन होता, तो आप आपका अकाउंटिंग कहाँ पे करते थे? वी आर डूइंग ऑन अ पेपर कि सर हाँ आज इतना खर्चा हुआ, इतना हुआ, पूरे मंथ का इतना टोटल है। इट्स अ कंप्लीटली मैन्युअल वर्क, इट्स अ कंप्लीटली मैन्युअल वर्क, सर नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पे क्या था कि वी हैविंग द मोर मैन पावर इज रिक्वायर्ड। ये पूरा कैलकुलेशन करो। एक अकाउंटेंट रहता था बड़े चश्मे वाला, वो बैंक के अंदर बैठा रहता था, आप जाते थे पैसे डालते थे, देन ही राइटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर शीट, हाँ चलो इसके अकाउंट में इतना पैसा चला गया, अभी इसके पास इतना बैलेंस है। ये चीज आप लोगों ने देखा है बचपन में, ओके। हाँ सर. उसके बाद क्या हुआ? फाइल सिस्टम आया। फाइल सिस्टम में क्या हुआ कि आपका जो डेटा था, वो लोग क्या करते कि उनके पास एक एक्सेल शीट होगा, या फिर देखो एक्सेल शीट बहुत सारे लोगों ने यूज किया है, अभी भी लोग यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन, यस और नो? बट जब Yes, yes. ये फाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे, दिस इज द ट्रेडिशनल मैकेनिज्म विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। बहुत ही ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है, आज भी हम लोग फाइल का यूज करते हैं। वी हैव दैट काइंड ऑफ फाइल कि वहां पे हम लोगों का सारा कैलकुलेशन रहता है। वी आर नोट डाउन समथिंग ऑन दैट फाइल, बट इट्स अ ट्रेडिशनल वे। इसके पीछे क्या होता था कि आपका डेटा रिट्रावेशन टाइम ज्यादा होता था। सपोज एसबीआई बैंक है, उसके अंदर कितने कस्टमर होंगे? मान लो कि आपके पास 1 लाख कस्टमर है एसबीआई के अंदर, एक ब्रांच के लिए, तो सारे लोगों का डिटेल आपका एक ही फाइल में जा रहा है, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड द डेटा, यस और नो? मान Yes, sir. लो कि ये एक्सेल शीट के अंदर 1 लाख लोगों का रिकॉर्ड है, और वो फाइंड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसका कैलकुलेशन बनाने में टाइम लगेगा। मींस जैसे ही हम लोग वो फाइल सिस्टम यूज जो कर रहे थे, वहां पे डेटा रिट्राइवल जो लग रहा था, इट्स टेक द टाइम, ओके। देखो ह्यूमन बीइंग इज द फास्टेस्ट वन, कि उन लोगों को देखो, हम लोगों को क्या चाहिए सर कि विद इन अ क्लिक सब चीजें होनी चाहिए, सबका टेंडेंसी है, यस और नो? होना चाहिए सर, मेरा एक क्लिक पे ना सारा चीजें आना चाहिए, लगता है आप सब लोगों को? Yes, sir. ओके। तो बट फाइल सिस्टम के अंदर दिक्कत ये हो रही थी कि जब हम डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, तो वहां पे आपको टाइम लग रहा है। वी आर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट डेटा, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द प्रॉपर डेटा, इट्स टेक द टाइम टू मेक द कैलकुलेशन।
तो ये प्रॉब्लम था आपके फाइल सिस्टम के अंदर डेटा रिट्राइवेशन में। मान लो कि आपके पास एक 10 GB का वर्ड फाइल है और उसके अंदर बहुत सारा डेटा है और आपको एक सिंगल डेटा फाइंड आउट करना है। इट्स टेक टाइम टू फाइंड आउट इट, यस और नो? फाइल ओपन करो, सर्च करो, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कभी कभी मिलेगा कभी भी नहीं मिलेगा। तो रिट्राइवेशन में दिक्कत जो हो रही थी, ये ड्रॉबैक था फाइल सिस्टम के अंदर। दूसरा था कि फाइल के अंदर डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, वी हैव अ डुप्लीकेट डेटा इनटू द फाइल। अभी मान लो ये शीट है और ये माधव का मैंने क्या किया, यहां से कॉपी करके वापस मल्टीपल टाइम डाल दिया डेटा को, मल्टीपल टाइम, तो डेटा डुप्लीकेशन हो रहा था, यस और नो? Yes, sir. ओके, ये भी उसका फाइल सिस्टम का एक ड्रॉबैक था। उसके बाद वी हैव द डेटा इंटीग्रिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है? Sir, combined all together. यस, मतलब वहां पे रिलेशन कुछ नहीं मिल रहा है, डेटा के अंदर कुछ रिलेशन नहीं। सपोज देखो, आप लोग सारे ई कॉमर्स वाले साइट यूज करते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ईबे, लाइक दिस करते हो। ओके, आपने सिर्फ ऑर्डर नंबर डालने के बाद उसका सारा चीजें आ जाती है, या फिर आप जाओ आपके यूजर के अंदर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करो, वो पर्टिकुलर, तो आपका ऑर्डर कहाँ पे है, उसका इनवॉइस कब डिलीवर होने वाला है, क्या क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें आती है। मतलब देयर इज अ नो इंटीग्रिटी। फाइल सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं था। देखो, आपने यहाँ पे डाला सर एक बंदे का नाम, सपोज मैंने डाला यहाँ पे राज रोकड़े का नाम। जैसे ही मैंने राज रोकड़े का नाम डाला, ओके, तो मुझे राज रोकड़े का सारा डिटेल आना चाहिए था, बट वो आ नहीं रहा है। ये फाइल सिस्टम में ड्रॉबैक था। दूसरा था सर, फाइल सिस्टम के अंदर डेटा को सिक्योरिटी ही नहीं है। अगर किसी ने आया, मेरा लैपटॉप ओपन किया और यहां से ये माधव का डेटा हटा दिया, तो कोई सिक्योरिटी बचेगा? बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? No, sir. नहीं No, sir. बचेगा। ओके, और अगर आपके पास 1 बिलियन रिकॉर्ड है फाइल के अंदर, तो उसके ऊपर आप इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपके बुक को इंडेक्स होता है कि आप वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर डायरेक्टली जंप करते हो फॉर द कॉन्सेप्ट, बट फाइल सिस्टम में वैसा भी नहीं है कि वो पर्टिकुलर चीज के ऊपर जंप करे, नहीं है इंडेक्सिंग भी। तो दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ द दिस फाइल सिस्टम। दैट्स व्हाई वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस द डेटाबेस स्कीम। डेटा रिट्रीवेशन में प्रॉब्लम था, डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, डेटा इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है, डेटा सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, डेटा इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम है। सो दैट्स रीजन कि यहाँ पे आपका क्या आया, डेटाबेस पिक्चर में आया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Why we are using the database? देखो, आपका फाइल सिस्टम, आपका पेपर, आपका बुक, आपका स्टोन, सारी चीजें आपका डेटा स्टोर कर रही है, बट अगर आपका डेटा ही सिक्योर नहीं है, अगर आपका डेटा ही डुप्लीकेट है और आपका डेटा फाइंड करने में टाइम लग रहा है, ओके, तो वो स्टोरेज का कुछ मीनिंग बनेगा? बिकॉज इट्स द फास्टेस्ट एरा कि आपको सिंगल क्लिक में सारा चाहिए सर, यस और नो? Yes, sir. सो दैट्स व्हाई we are going to learn about this database कि हम लोगों को सिक्योरिटी का इशू रिजॉल्व करवाना है, डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, रिट्रीवेशन करना है, इंडेक्सिंग करवाना है, इंटीग्रिटी करवाना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करवानी है, अचीव करवानी है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डेटाबेस। सो मार्केट के अंदर अभी डेटाबेस, मार्केट के अंदर क्या है कि वी हैव द सो मेनी एप्लीकेशन, ओरेकल है, टेराडेटा है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएलाइट है, इन्फॉर्मिक्स है, साइबेज है, टेराडेटा है, माई सीक्वल है। वी हैव द लॉट ऑफ एप्लीकेशन, बट इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, इट्स अ सीक्वल। यही एक ऐसी लैंग्वेज है, आप कौन से भी डेटाबेस के ऊपर काम करो, वहां पे आपको इसका यूज करना ही करना है। डेटा रिट्राइवेशन के लिए डेटा डुप्लीकेट हटाना है, इंटीग्रिटी बनाना है, डेटा सिक्योरिटी बनाना है, इंडेक्सिंग बनाना है, तो कौन से भी डेटाबेस के ऊपर जब काम करोगे, तो वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर द सीक्वल। यही एक अकेला लैंग्वेज है कि ये सारी चीजें वहां से सही से बना सकता है। तो अभी मेरा कंसर्न ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है टेराडेटा के ऊपर, तो क्या होगा, तो आप वहां पे सीक्वल यूज कर सकते हो। अभी
बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मुझे माई सीक्वल में इंटरेस्ट है, मुझे सीक्वल एमएस सर्वर में इंटरेस्ट है, सर मुझे टेरा डेटा के ऊपर इंटरेस्ट है। बट सबके अंदर एक चीज कॉमन है, सर ये लैंग्वेज सीखना जरूरी है अगर आपको डेटाबेस इंजीनियर बनना है तो। गॉट इट? समझ में आया ये वाला चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी उसके बाद DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मैंने आपको जितने एप्लीकेशन बताए, ओरेकल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, एसक्यूएलाइट, इन्फॉर्मिक, साइबेज, जितने भी मार्केट के अंदर आजूर है, जितने भी टूल मार्केट में है, इट्स यूज फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्यों लगेगा ये चीज समझ में आया, बट इसको मैनेज करने के लिए जो टूल लगेंगे, these are the Oracle, Teradata, SQL Server, MySQL, SQLite, Informix, Sybase, Azure, Big Data, Hadoop, ये सारी चीजें हैं, ये मैनेज करेगा आपका database management system. It is the collection of the program or a software which is used to manage your data. It's called as a DBMS. DBMS का मतलब समझा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो आप लोगों ने आपके ग्रेजुएशन के अंदर ये चीज देखी होगी कि सर हमने DBMS देखा, सर हमने RDMS देखा, सर हमने ये देखा, हमने वो देखा, बट एक्चुअल मीनिंग ये है DBMS इज नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेजिंग योर डेटा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी तक आपको क्या पता था? व्हाट यू मीन बाय डेटा DBMS? अभी तक आपको क्या पता था? आपको सिर्फ इतना ही पता था DBMS is nothing but the database management system, but it's a collection of the software or a program which is manage your data. That's why it's called as a DBMS management system. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल है, जैसे ओरेकल मैंने आपको पूरा लिस्ट बताया, तो ये क्या करता है, इट्स मैनेजिंग योर डेटा, और ये डेटा को मैनेज करने के लिए सब एप्लीकेशन के अंदर एक ही लैंग्वेज है, इट्स योर सीक्वल। इसीलिए सीक्वल सीखना जरूरी है। आप किसी भी डेटाबेस के ऊपर काम करोगे तो वहां पे आपका सीक्वल है और वहां पे आपको क्वेरी लिखना ही लिखना है। क्लियर? Yes, sir. अभी ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं हाउ द योर क्वेरी इज वर्किंग विद द दिस वन। देखो फोन पे का एग्जांपल लेते हैं, इट्स अ वेरी फैमिलियर टू ऑल। ये आपका फोन पे का एप्लीकेशन है, वो कौन से भी लैंग्वेज में रहने दो, फोन पे एंड्रॉइड में हो, एंड्रॉइड में इंप्लीमेंट किया हो या विंडोज में किया हो, एनीवेयर एक आपका फोन पे का एप्लीकेशन है। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी आर डूइंग ऑन अ फोन पे? What kind of operation we are doing on a फोन पे? क्या क्या ऑपरेशन करते हैं आप लोग फोन पे के ऊपर? Sending money, receiving money. ट्रांसफर मनी। देखो सबसे पहला आपका यूजर नेम, आपके अकाउंट लिंक हो जाएंगे, आपका यूपीआई जनरेट हो जाएगा, देन वी आर एबल टू यूज द फोन पे। आफ्टर दैट आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप वेरियस क्रेडिट कार्ड बिल, फोन बिल, एनीथिंग वी आर गोइंग टू पे ऑन अ फोन पे। करेक्ट? अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप भेज सकते हो, किसी से पैसे आने तो आ सकते हो। दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑन अ फोन पे। अभी देखो इसके नीचे आपका एक एप्लीकेशन होता है, इट्स योर डेटाबेस मैनेजमेंट, इट्स अ DBMS। ओके, मींस यहाँ पे इधर ओरेकल होगा, MS सर्वर होगा, कुछ भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डेटाबेस होता है एट द एंड। ओके, इट्स योर डेटाबेस। ओके, देखो आप लोग क्या करते हो, यहां से ऑपरेशन शुरू करते हो, इसके थ्रू आपके डेटा के अंदर जाती है। ओके, अगर आपने क्या किया, यस ने पूनम को 100 रुपए सेंड किया, मींस इट्स बिकेम अ ट्रांजैक्शन, तो उसके बाद आपके पास हिस्ट्री आता है, यस और नो? Yes, sir.
हिस्ट्री मिलता है आपको कि हाँ यश ने क्या किया, पूनम को 100 रुपए सेंड किया, तो यश के पास भी हिस्ट्री होता है और पूनम के पास भी हिस्ट्री होता है, मींस इट्स गोइंग टू दिस वे। आपका आईओ ऑपरेशन होता है सर, एक रिक्वेस्ट जाता है डेटाबेस के अंदर, डेटा स्टोर हो जाती है और उसके बाद आपका यहाँ पे डेटा भी दिखता है, करेक्ट? यस और नो? तो Yes. ये आपका स्टोरेज होना जरूरी है, ये जो चीज है ये होना जरूरी है। आपने जो भी ऑपरेशन किया उसका पूरा ट्रांजैक्शनल डिटेल होगा या आपका मास्टर डेटा होगा, ट्रांजैक्शनल डेटा होगा, वो जाके स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं फोकस करना है, यहाँ से यहाँ तक डेटा आता कैसे है और यहाँ से ऊपर डेटा जाता कैसे है, दैट्स द एजेंडा ऑफ द दिस ट्रेनिंग। ये वाला चीज हम लोगों को सीखना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन होता है कि सर डीबीएमएस तो समझ में आ गया मुझे, ओके, इट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि आपका डेटाबेस जो भी एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम लोग स्टोर द डेटा, रिट्राइव द डेटा, यहाँ से हम लोग वो एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। बट देयर इज द वन अनदर थिंग आस्क इन इंटरव्यू, इट्स RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। म्यूट करो। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी देखो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा कि हमने यहाँ पे एक चीज देखा था कि देयर इज अ नो इंटीग्रिटी बिटवीन द फाइल्स, कि एक डेटा के ऊपर दूसरा डेटा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ होता क्या वहां पे फाइल में? नहीं। तो वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए वी हैव द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स बनाए जाएंगे और वो टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, इट्स कॉल्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. मतलब देखो यहाँ पे आ जाइए, आपका ट्रांजैक्शनल डिटेल एक टेबल के अंदर जा रहा है, आपका पर्सनल डिटेल एक इसके अंदर जा रहा है, आपका यूपीआई का डिटेल एक के अंदर जा रहा है। बट इफ यू वांट टू डूइंग द वन ट्रांजैक्शन तो आपका पर्सनल डिटेल भी जरूरी है, आपका ट्रांजैक्शनल डिटेल मतलब अकाउंट डिटेल भी जरूरी है, और उसके बाद आपका यूपीआई भी जरूरी है। तो इन सारों को एक साथ यूज करवाना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द RDBMS, रिलेशनल मॉडल यूज करेंगे। इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, और एक चीज, अभी यहाँ पे ओरेकल का डेटाबेस है, यहाँ पे MS सर्वर का, ये दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए भी हम लोग RDBMS यूज करेंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आया? सर मैंने आपको सिर्फ 4 चीजें सिखाई, आई एम नॉट इन हरी। देखो मैंने आपको 4 चीजें सिखाई। एक था सर आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, DBMS एंड RDBMS। समझ में आया? Yes, sir. यहां तक समझ में आया? तो गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों के पास DBMS एंड RDBMS के लिए एक टूल यूज करेंगे, इट्स कॉल्ड एज अ ओरेकल। समझ में आया? ओरेकल के अंदर हम लोगों को 3 चीजें सीखनी है। वन इज द सीक्वल, सेकेंड वन इज द PL सीक्वल, थर्ड वन इज द डायनेमिक सीक्वल। क्लियर? देखो सीक्वल, SQL मतलब क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, एंड डायनेमिक सीक्वल इट्स नथिंग बट योर SQL प्लस PL सीक्वल। ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, इट्स अ डायनेमिक सीक्वल, वेरी स्मॉल, बट इट्स अ सीक्वल एंड PL सीक्वल के ऊपर हम लोगों को ज्यादा काम करना है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, अभी देखो हम यूज करेंगे ओरेकल को, बट ये भी चीज पता होनी चाहिए कि सर ओरेकल हुआ कब? बराबर, ओरेकल इंट्रोड्यूस हुआ था 1977 के अंदर। ओके, और 1978 के अंदर उसका फर्स्ट वर्जन आया था, इट्स 1.0।
Oracle 1.0। तो ये चीज बेसिक चीज है, पता होना चाहिए। ओके, करंटली वी आर वर्किंग द 18C, और उसके आगे भी चल रहे हैं कुछ, 19C भी चल रहा है, 20 है, 21 है, 22 भी है। ओके, तो इतने सारे वर्जन है। 1977 से लेके 2023 तक हम लोगों के पास 22C है। अभी आपके पास भी सिस्टम है, आपके पास भी एंड्रॉइड है, आपके पास भी विंडोज है। चलो मान लो जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज इंट्रोड्यूस किया था तब क्या था? वी हैव द दिस काइंड ऑफ फीचर जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे, था? नहीं था। नहीं था। सबसे पहले उन्होंने एक ब्लैक स्क्रीन बनाया, उसके ऊपर आपको मैन्युअली ऑपरेशन करने पड़ते थे। उसके बाद एक यूआई आया, XP आया, 97 आया, 7 आया, 8 आया, 10 आया, 11 आया, करेक्ट? तो ये जो विंडोज का था सेम यहाँ पे ओरेकल पे हुआ। 1978 के अंदर उनका सबसे पहला एक वर्जन आया, उन्होंने वो रिलीज ही नहीं किया। ओके, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन 1979 में 1979 पे वर्जन आया 2.0। वहां पे क्या था? इट्स अ बेसिक फंक्शनलिटी था कि आप सिर्फ वहां पे क्वेरी लिख सकते थे, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं था। वैसे जैसे जैसे उन लोगों का वर्जनिंग होता गया यहाँ पे, सो वी हैव अ लॉट ऑफ फंक्शनलिटी। दिस आर द सिंपल टाइमलाइन कि यहाँ से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टिल दे आर वर्किंग ऑन दिस। दैट्स व्हाई द स्कोप ऑफ द ओरेकल इज वेरी हाई, बिकॉज they are introducing the new things into the server each and every time। जो भी पैच उनका रिलीज होता रहता है वहां पे कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी आता रहेगा। तो हम लोग यहां तक काम करने वाले हैं। ओके, यहां से लेके यहां तक काम करवाना है। इन बिटवीन आप लोगों का 11G आता है। ओके, 11G यहां तक आए मतलब यहां से यहां हो जाएगा। इसका भी मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा कि क्लाउड के ऊपर कैसे काम होगा। क्लियर? यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी देखो आपका क्वेरी वाला टूल कैसे काम करता है। अभी हम लोगों के पास दो टूल है जो कि कल हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। दिस वन, ये स्क्रीन सबके पास है। Yes, sir. वी आर एबल टू कनेक्ट। कुछ एक्सेप्शन है उन लोगों के लिए, मैं कुछ अरेंजमेंट करूंगा आज रात में कि हम लोग एक कॉल सेटअप करके मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा कि जिन जिन लोगों का इशू है वी विल कनेक्ट एंड सॉर्ट आउट दैट इशू टुडे इटसेल्फ। बट देखो यहाँ पे सबके पास ये वाला स्क्रीन है कि वी आर एबल टू कनेक्ट टू द स्पॉट। ओके, मतलब ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है क्वेरी। ओके, देखो वापस से यहाँ पे जाते हैं, आपको वापस से समझाता हूँ क्या होता है। देखो अभी एक है आपका क्वेरी टूल, जो कि आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, इट्स योर क्वेरी टूल। ओके, उसके पीछे एक डेटाबेस बनवाना है। ओके, अभी इसके अंदर आपका डेटा है। यूजिंग दिस क्वेरी टूल वी आर रिट्राइविंग द डेटा, वी आर इंसर्टिंग टू डेटा, वी आर अपडेटिंग टू द डेटा। ओके, तो ये आपका एसक्यूएल प्लस है, यहाँ पे आपके टॉड होगा, एसक्यूएल डेवलपर होगा, एसक्यूएल नेविगेटर, एनीथिंग। तो यहाँ पे हम लोग दो चीजें सीखने वाले हैं। एक है आपका एसक्यूएल प्लस टूल जो कि ब्लैक स्क्रीन है, और एक दूसरा है इट्स योर एसक्यूएल डेवलपर। ये इस तरीके से दिखता है। ये जैसे ही हम लोगों का हैंड्स ऑन आ जाएगा क्वेरीज के ऊपर, तो हम लोग ये यूज करना शुरू करेंगे। इट्स मीन वी आर स्टार्ट वर्किंग ऑन फॉर द पीएल सीक्वल। तब तक आपका पूरा हैंड्स ऑन आ जाएगा क्वेरीज लिखने के लिए। इसीलिए ये ब्लैक स्क्रीन है, यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट नहीं करवाना है कि अगर क्वेरी गलत होता है, वी आर नॉट एबल टू राइट द करेक्ट क्वेरी, तो क्वेरी बार बार लिखनी पड़ेगी। तो जब बार बार क्वेरी लिखेंगे तो क्या होगा कि वी हैव द प्रैक्टिस फॉर द दैट क्वेरी। दैट्स व्हाई दिस टूल वी आर यूजिंग। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्टली एसक्यूएल डेवलपर के ऊपर काम कर सकते हैं, बट
आप लोगों को चाहिए सर मार्केट के अंदर स्टे करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, ओके, तो हम लोगों को हैंड्स ऑन लाना पड़ेगा। एज डिस्कस इन प्रीवियस सेशन, अगर आपको 3, 4, 5 महीने के अंदर अगर आपको 3, 4 साल का एक्सपीरियंस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उतना प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेरी गलत हुआ है, कॉपी पेस्ट करके हम लोग चले जाएंगे अंदर, बट क्वेरी मल्टीपल टाइम, अगर एक क्वेरी अगर आप मल्टीपल टाइम, अगर एक क्वेरी आपका मल्टीपल टाइम रॉन्ग हो जाता है तो आप उसको क्या करोगे? यहाँ पे मल्टीपल टाइम लिखोगे, तो आपको एरर भी समझ में आ रहा है कहाँ पे गलती हो रही है, क्वेरी भी आपके हाथ से ज्यादा टाइम से निकल जाएगा। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको दिक्कत आएगा, दिक्कत आएगा नहीं आएगा ना? इसीलिए ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। समझ में आया? देखो कल हम लोगों ने और एक चीज किया था कि जैसे ही इंस्टॉलेशन हुआ, ओके, 11G का जैसे ही इंस्टॉलेशन हुआ तो सिस्टम ने आपको पूछा यूजर नेम, आपने डाला स्कॉट, ये चीज नोट डाउन करो, स्कॉट। उसके बाद टाइगर डाला, बट वहां पे एक एरर मैसेज आ रही थी, यूजर अकाउंट लॉक। ये चीज हुआ था, Yes, sir. करेक्ट? ये चीज Yes, हुआ। sir. उसके बाद आपने क्या किया? अगेन वी नीड टू कनेक्ट विद sys as sys pd, इसको कनेक्ट करवाया, ओके, Yes. उसका पासवर्ड डाला था SYS। उसके बाद एक क्वेरी लिखा, अल्टर यूजर अकाउंट अनलॉक। जैसे ही ये इसको एंटर किया तो आपका मैसेज आया नीचे, यूजर अल्टर, करेक्ट? ये चीज हुआ था, आप लोगों ने ये चीज को फॉलो किया है। जैसे ही आपका यूजर अल्टर हो गया उसके बाद आपने क्या करवाया? अगेन यू ट्राई टू कनेक्ट विद द स्कॉट और आपने पासवर्ड डाला, ये चीज किया। जैसे ही पासवर्ड डाला तो उन्होंने एक एरर मैसेज दिया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे थे, तो योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड। ऐसा आया था, पासवर्ड एक्सपायर्ड, ओके। उसके बाद आपने क्या किया? नया पासवर्ड सेट किया, सेम पासवर्ड सेट किया था हम लोगों ने सबने, ओके। उसके बाद रीटाइप किया अगेन, नाउ यू गेट द मैसेज लाइक एज अ कनेक्टेड। ये चीज फॉलो किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यहां तक सबको समझ में आया क्या क्या प्रोसेस किया, क्या क्या करवाना है, बेसिक थिंग? यहां तक सारे लोग आ गए ना? हम लोग अभी वी आर इन अ सेम पेज ना राइट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक सब लोग है कि हाँ मेरा अकाउंट सेट है। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया? सिर्फ SQL Plus को ओपन किया और वहां पे यूजर नेम डाला स्कॉट, पासवर्ड इज टाइगर, देन आई एम एबल टू कनेक्ट। ये स्क्रीन सबके पास आया होगा इस तरीके से। क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? No, sir. ओके, नाउ आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, ओके, वी आर स्टॉप फॉर अ डे। अभी जिन लोगों का इंस्टॉलेशन का इशू है उनके लिए मैं इवनिंग में एक शेड्यूल करता हूँ आफ्टर 7। प्लीज कनेक्ट ओवर देयर दोज हैविंग द इंस्टॉलेशन इश्यूज। इज इट फाइन? तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Okay, sir. so can I wind up the call for a day? जो लोग Yes, sir. नए हैं क्या मेरे पास, रोहन, I need your contact number
name. Komal, as well, I need your contact number. Okay, sir. ये स्वरूप ने जिस तरीके से भेजा है ना, इस तरीके से भेज दो. Okay. Aishwarya, you also new for a day, na? Aishwarya. So please share your detail like as this. Okay. If you're not sharing the details, then you are not able to receive the mail and you are not able to download that Oracle 11G or Power BI setup. And if you are not able to do that, and installation is never happen on your system, so please share your details. So I will forward the drive link and you download from there only. Okay. Thank you guys. Thank you so much. We will meet tomorrow morning with the new topic. Thank you. Thank you, sir. Any doubt? Thank you, sir. Thank you. Yes, so Hello, any sir. concern? Yes. Hello. Yeah. हेलो सर. Yes, Jaideep. सर आपसे कॉल पे बात करने का था. आप किस समय अवेलेबल हो दिन भर में? एक काम करो, आफ्टर 7 मुझे कॉल कर लो, या फिर वो लास्ट वाला जो इंस्टॉलेशन वाला सेशन होगा इवनिंग में ना, तो उसमें आ जाओ. देखते हैं क्या इशू है. वी नीड टू टॉक समथिंग. इफ यू वांट टू टॉक प्राइवेटली, सो यू विल कॉल मी बाय नंबर. माय व्हाट्सएप नंबर इज दिस. 12 शायद सर आप बिजी थे दिन भर. Actually, I'm working, so it's like as I'm not able to receive a call or like that. Okay. If you have any concern, please ping on the WhatsApp, so I will answer accordingly. Okay sir, sure. Okay. Thank you sir. Okay. Thank you. This is my WhatsApp number, so you can WhatsApp me on this number only. Sure sir. Thank you. Okay. Anyone? Som, any issue? नहीं सर, वही था कि मुझे कॉल करना था आपसे बात करने के लिए. Fine. तो So we will connect Okay. on evening. तो सर, Okay. I will update on Telegram channel. So Okay, we sir. will connect after 15 minutes immediately then. yes sir. Yeah. Thank you sir. Thank you. So anyone having any concern, any doubt? No, sir. The topic is easy or something we need to improve somewhere? There is a No, sir, language it's- barrier like that. So in which language we going to turn this session? Anything? Yes, Pooja? No sir, I think it's सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि डेली के जो क्लासेस रहेंगे उसके नोट्स मिलेंगे क्या? Yes. Once your registration and this all stuff is done, then ओके. I will provide the all stuff. Whatever thing we are covered in the demo session and in weekend session, so it will be there for you. ओके. थैंक यू सर. Yeah. No worry about this one. सारी चीजें मिल जाएगी आपको, पूरे नोट्स मिलेंगे. आपको सेशन के अंदर कुछ दिक्कत हो रहा है तो इमीडिएटली रेज योर क्वेश्चन कि ये चीज हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, सो वी विल रिपीट दैट थिंग मोर टाइम, बट आई नीड अ very clear clarification on the topic, because when we go for the any interview, then they ask the question, so my candidate should not be like as a struggling somewhere. So that's my intention. So please, if have any concern, any doubt, any topic you are not getting, then please raise your hands or say something. I'm not able to understand, so we'll repeat this topic again and again, but we need a result. Okay. Okay. Anyone having any concern? So can I stop a session for a day? Yes sir. Okay, Yes, sir. guys. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.
Have a nice day. थैंक यू सर.